Hello everyone, welcome you all on your channel Ravneet Study Corner. So as you all know that we are doing physics, and in this particular series we are doing physics according to our syllabus of Master Cadre Science as well as Lecturer Cadre Physics. And today we are going to do second lecture of our third unit, that is particle physics. So I hope you have covered the particle physics lecture number 1 till now, because जो भी आज हम करने वाले हैं वो सारा interlinked ही है. So if you haven't watched first lecture till now, go to the playlist of particle physics and cover your first lecture and then proceed with this lecture. So as you can see the screen, this is our last slide of last lecture, first lecture. So we have already classified our elementary particles. So our last particle that we have classified was hadron. So hadron was further classified into mesons and baryons. Mesons are known as strongly interacting bosons, and baryons are also known as strongly interacting fermions. I hope you know the clear difference between fermions and baryons. So if I'll say that fermions are those particles who have a spin half integral multiple of h cut, or it follows follows Fermi Dirac statistics. And you'll answer in comment section that what are mesons and their spin and the statistics the mesons are following. So I hope classification till now is clear to you. And then mesons are further divided into pi mesons, k mesons and eta mesons, and then baryons are divided into nucleons and hyperons. So if we'll further talk about classification, then pi mesons, there are pions, are further classified into three types, that is pi positive, pi negative and pi pi zero, means neutral pi. Or if we'll talk about k mesons, that we are also known as kaons, it is also divided into three categories, that k positive, k negative and k naught, that is k neutral. And then eta meson, in this system of eta meson, it exists alone with its antiparticle. Okay, so if I further talk about details of the pions, that pi mesons, then there are three particles as I've already mentioned, pi positive, pi negative and pi naught. So मैं पिछली स्लाइड में आपको बताया था मैंने that masses, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके मास कंपेरेबली इक्वल होते हैं और चार्ज वेरी करते हैं, और आपको बोला था कि इन सब चीज़ों को ना एक माइंड में रखो क्योंकि आगे जाके काम आएंगे. सो अभी भी मैं वही बोल रही हूँ, आगे जाके कुछ हमारे जो है इंट्रिंसिक क्वांटम नंबर समझने में ये जो पॉइंट है ये हमारा यूज़फुल होगा. तो मासेस यहाँ पे क्या है, कंपेरेबल इक्वल हैं, एंड द ओनली चेंज इज चार्ज डिफर कर रहा है. पाई पॉजिटिव का पॉजिटिव ई, पाई नेगेटिव का माइनस ई एंड देन पाई नॉट का जीरो, कज इट इज़ न्यूट्रल, एंड स्पिन तीनों की ही ज़ीरो है. And if we'll talk about antiparticles, then pi negative is the antiparticle of pi positive and pi naught is antiparticle of itself. So then kaons, which we also known as k mesons. So here I'll also suggest you to make a point in your mind that masses of kaons are also comparable, and only thing that vary is charge and spin is zero. So here also k naught is antiparticle of itself and k positive is antiparticle of k negative, or vice versa. And then eta mesons, or can say neutral particles. So of eta meson is 1073, that is 1073 times mass of electron, and spin is 0, and eta meson is antiparticle of itself. So if you have noted one thing, that spin of all the mesons is 0, or can say 0 or integral multiple of h cut. So if you remember this condition, then also remember that this is the condition for bosons, or can say strongly interacting bosons. So mesons are also known as strongly interacting bosons. Okay, so next point is baryons. So baryons are further divided into two categories, that is nucleons and hyperons. And nucleons, as we all know that nucleons are of two type here, that is proton and neutron, and we are not considering electron here because electron is a lepton.
and we have already discussed about that. And the second type is hyperons. So hyperons are of these types that are lambda, sigma, xi and omega. So we'll talk about these as well. So these are strongly interacting fermions. So again, you know the condition of fermions, that is half integral multiple of h cut. Spin is half integral multiple of h cut. So yeah, this is the condition. So if we'll talk about nucleons, we all know that mass of proton is 1836 times mass of electron, and similarly mass of neutron is 1839 times mass of electron. So it is also comparable. बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में. और चार्ज हम सबको पता है that proton is positively charged and neutron is neutral in nature, and spin is half of both. So because it is you can also match it with the strongly interacting fermions conditions. So p bar is the antiparticle of proton, and neutron का जो antiparticle है that is antineutron. So here comes hyperons. So rest mass of hyperons, all the hyperons vary, but if you'll notice that in particular class, there are class of sigma, class of xi and class of omega and lambda. In particular class the mass is comparable. So if we'll talk about a sigma, the mass is comparable and it is 1189, 1197 and 1192 mega electron volt per c. So similarly you can also see that xi hyperons are also of comparable mass, and spin is half of all the hyperons, and antiparticle is, as you can see here, lambda bar, sigma negative of sigma positive of sigma negative, and so on. So that's all for hyperons, or can say about the classification of elementary particles and their sub classification as well. So आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना कि एक एक पार्टिकल का डिटेल में रेस्ट मास तक सब कुछ याद करना, बस इतना याद करना है कि पर्टिकुलर क्लास में उन सब का जो मतलब कंपैरेबल है वो कितना है, कितनी रेंज में है. जैसे ओमेगा नेगेटिव का सबसे ज़्यादा 3290 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और इसकी जो क्वार्क कंटेंट है वो भी स्ट्रेंज है. उसके बारे में हम बात करेंगे जो क्वार्क्स, जब विल टॉक अबाउट क्वार्क्स. सो जो स्ट्रेंज जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं वो याद करने हैं. ऐसे नहीं कि पूरे को रट्टा लगाना और देख के डर ही जाना है कि इतना बड़ा टेबल है हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है. और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे जैसे लेक्चर एक एक करके जा रहा है, अगर आप एक एक लेक्चर को साथ साथ ही नोट डाउन करते जाओ, साथ साथ ही रिवाइज करते जाओ, तो आई डोंट think that it will be difficult for you to remember. Okay, so next thing that we are going to do is interaction. So we have already talked about carriers or different kind of elementary particles, gravitons, gluons, leptons, hydrons, photons and all. So the basic interaction, four interaction fundamental interactions are here, that is gravitational, electromagnetic, weak and strong, and their strength, range and carrier. So we have already discussed about carriers, we will talk about strength and range here. So range of gravitational and electromagnetic is infinite. So gravitational जैसे मतलब huge body हैं, जैसे कोई planets हैं, जब वो move करते हैं तो हम पर भी उनका effect पड़ता है. What I mean to say कि अगर कुछ भी मूव कर रहा है इस अर्थ पे या इन दिस यूनिवर्स, तो उसका इफेक्ट हम पर पड़ रहा है बाय ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन इज आल्सो ऑफ इनफाइनाइट रेंज, and then the range of weak interaction, that is 10 to power minus 17 meter, and strong interactions which we known as nuclear interactions, उनकी range है 10 to power minus 15 meter, that is 1 Fermi, that is radius of the nucleus, मतलब वो radius के अंदर अंदर ही एक्ट करती है. और जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, जिसकी हम अगर न्यूटन्स में बात करें तो उसकी 1 अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो उसके कंपेयर में जो सबसे वीक है दैट इज़ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, और सेकेंड नंबर पे जो आती है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, दैट इज़ 10 to power minus 2 न्यूटन. और अगर मैं वीक इंटरेक्शन की बात करूँ तो दैट विल बी 10 to power minus 15 न्यूटन. आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया है इंटरेक्शंस. और अगर मैं इंटरेक्शंस के डिटेल में बात करूँ, उनके सब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूँ, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल आर 4 फंडामेंटल इंटरेक्शंस. सो ग्रेविटेशनल इज ऑफ इनफाइनाइट रेंज बट इट इज़ वीकेस्ट इन नेचर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. लॉन्ग रेंज इनफाइनाइट है. और द 2 forces that obey inverse square law is electromagnetic and gravitational, and gravitational force is always attractive in nature whereas electromagnetic can be repulsive as well as attractive. तो आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, एक को
दूसरे के साथ रिलेशन में रख के, ऐसे याद करना इजी हो जाता है। और अगर मैं वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात करूँ तो दोनों ही शॉर्ट रेंज हैं, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं करती, और उसके कैरियर्स हैं लेप्टॉन्स, दैट इज़ W पॉजिटिव नेगेटिव एंड Z नॉट। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की कैरियर्स की बात करूँ तो दैट आर ग्लूऑन्स और कैन से हाइड्रॉन्स। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियस के अंदर लगती हैं और चार्ज इंडिपेंडेंट हैं और स्पिन डिपेंडेंट हैं। तो वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट न्यूक्लियर फोर्सेस इन डिटेल in our first unit, that is nuclear physics, and we have already talked about it. So if you haven't watched those videos till now, go watch those videos and then come or proceed with this video. So next topic that I'm going to talk about is intrinsic quantum number. So as I've already written here, the first quantum number, the first intrinsic quantum number is lepton number, and the rest of four are baryon number, isospin, hypercharge and strangeness, and these are denoted by L, B, I, Y and S respectively. So these are some quantum numbers that we use to differentiate between certain groups of पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स. सो जो मैंने पहले बातें करी हैं, दैट मास अगर सेम है तो उनकी एक क्लास बना लेंगे, और अगर चार्ज डिफरेंट है तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर कोई पार्टिकल है और कोई एंटी पार्टिकल है उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पार्टिकल्स, और उन सबको अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो कोई ना कोई हमें क्वांटम नंबर या पैरामीटर रखना ही पड़ेगा. सो दीज आर 5 पैरामीटर्स दैट वी यूज इंट्रिंसिकली टू डिफ्रेंशिएट ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट वी कांट डिफ्रेंशिएट बाय यूजिंग आर पैरामीटर्स दैट वी हैव ऑलरेडी यूजिंग, दैट आर rest, mass, charge, spin and many more like that. So first quantum number, intrinsic quantum number that I'm talking about here is lepton quantum number. So if I'll use slide of previous video, that is the leptons are also known as weakly interacting fermions and only respond to weak interactions. Or first lepton that is written here is neutrino. So rest mass 0, charge 0, spin is h cut by 2 as per our conditions of fermions, and it is further divided into 3 types, that is electron neutrino, muon neutrino and tau neutrino. So I hope this is clear to you. So if we'll talk about lepton number classification, then these are divided into 3 types, that is neutrino, electron and muon, and antiparticles as well, that is antineutrino, positron and mu positive. So neutrino, that is nu e, nu mu and nu tau, that these are particles, and their antiparticles are nu e bar, nu mu bar, nu tau bar. So for lepton numbers L is +1, so for antiparticles L is -1 and for other particles L is 0. और ये जो अभी मैंने पढ़ाया दैट L पॉजिटिव, L नेगेटिव और L 0, ये तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ lepton नंबर्स, कंजर्वेशन ऑफ हाइपर चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस. सो ये सब वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा जब हमें पता चलेगा कि इस पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस और इस पार्टिकल का lepton नंबर +1 है, और अगर रिएक्शन हुई है तो उसके बाद अगर +1 रह रहा है तो ये मतलब कंजर्व कर रहा है. Similarly, if I'll talk about baryon number, तो baryon numbers further divided into nucleons and hyperons. So हमें पता है baryons कौन कौन से हैं, that are neutron, proton और hyperons जो 4 तरह के हैं, sigma, lambda, xi and omega. तो यहाँ पे जो बेरियंस हैं उनके लिए बेरियन नंबर दैट विल बी +1, एंटी बेरियंस के लिए बेरियन नंबर विल बी -1, और बेरियंस जो है ही नहीं, जो ना एंटी हैं और ना ही बेरियंस हैं, उनके लिए जो अदर पार्टिकल्स हैं उनके लिए बेरियन नंबर होगा 0. सो नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज़ आइसोस्पिन. आई होप जितना अभी तक पढ़ा है वो सारा नॉलेज आपने रिटेन करके रखा होगा, क्योंकि जो मैं बोल रही थी कि कितने बार ही बोला मैंने ये पॉइंट कि जो हम एक अलग क्लास बना लेंगे जिनका मास सेम होगा लेकिन वो चार्ज से सिर्फ डिफ़र करेंगे, तो उनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो हमारा क्वांटम नंबर यूज़ करेंगे दैट विल बी आइसोस्पिन. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा अब जो
कि वो कौन सी क्लासेस हैं जिनके लिए जो मासेस हैं वो सेम है। सो अगर मैं बात करूँ तो सभी केऑन्स के मास सेम है, सभी पायोन्स के मास सेम है, के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के नॉट, पाई पॉजिटिव का पाई नेगेटिव और पाई नॉट, इन तीनों के आपस में कंपेरेबल मासेस हैं। और अगर मैं बात करूँ सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा ज़ीरो की हाइपरॉन्स थे जो, उनका भी मास कंपेरेबल था। सो वो सभी को अगर मैंने डिफ्रेंशिएट करना है तो किससे डिफ्रेंशिएट करना है? पाइप आइसोस्पिन से। ओके, सो अगर मैं आइसोस्पिन की बात करूँ तो ये हमें स्टेट्स बताती है, और इसकी कितनी स्टेट्स हैं ये हमें जानने के लिए एक फार्मूला दैट इज़ 2i+1 वेयर नंबर ऑफ स्टेट्स वेरीज फ्रॉम -i to +i। ओके, सो अगर मैं पायोन्स की बात करूँ दैट इज़ पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई नॉट, तो 3 पायोन्स हैं और उनके लिए i की वैल्यू है 1। और अगर मैं 2i+1 में वैल्यू पुट करती हूँ इट विल बी 3, तो हमारे पास 3 स्टेट्स आ गई। और अगर मैं पाई पॉजिटिव के लिए बात करूँ तो i3 विल बी +1, पाई नेगेटिव के लिए i3 विल बी -1 एंड पाई नॉट के लिए i3 विल बी 0। तो -1 से लेके +1 तक 3 स्टेट्स हैं। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ i3 मैंने क्यों लिखा, तो आप i3 से भी इसको डिनोट कर सकते हैं और iz से भी डिनोट कर सकते हैं। ये मतलब एक अगर सिंगल स्टेट रिप्रेजेंट करनी हो किसी भी सिस्टम में से तो वो होगी iz और i3 से, और अगर मैंने पूरी सिस्टम की आइसोस्पिन बतानी है तो वो होगी i से रिप्रेजेंट। ओके, सो अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए i विल बी 1/2। तो अगर मैं 1/2 + 1 = 2 स्टेट्स, तो 2 स्टेट्स कौन सी होंगी? -1/2 दैट इज़ फॉर न्यूट्रॉन एंड +1/2 दैट इज़ फॉर प्रोटॉन। और एक बात की स्पिन और आइसोस्पिन में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने बात की पायोन्स की स्पिन 3 आ गई +1 - आइसोस्पिन 3 आ गई +1 - 1 और 0। और स्पिन सभी की पायोन्स की क्या आती है? 0 होती है। मतलब पायोन्स कैन स्ट्रांगली इंटरेक्टिंग बोसोन्स और उनकी स्पिन इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h और 0। तो पायोन्स की स्पिन तो अलग है लेकिन आइसोस्पिन अलग है यहाँ पे, दैट इज -1 0 और +1 अकॉर्डिंग टू पाई नेगेटिव, पाई 0 और पाई पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है इंट्रिंसिक दैट वी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाइपरचार्ज। सो हाइपरचार्ज बेसिकली है क्या? इज़ इट ट्वाइस द एवरेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अगर जैसे हमारे पास पायोन्स थे, केऑन्स थे, अगर मैं पायोन्स की बात करूं तो पायोन्स का चार्ज क्या है? +1 है, एक का -1 है और एक का 0। अगर मैं तीनों को सम कर दूं तो दैट विल बी +1 -1 और 0 दैट विल बी 0। येस, और कई दूसरे केसेस होंगे जिनमें ये चार्ज 0 नहीं होगा लेकिन यहाँ पे 0 हो गया, तो हाइपर चार्ज यहाँ पे इनका 0 हो गया। ओके, तो आई होप आपको हाइपर चार्ज का क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सो अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ से सिर्फ दो ही मैं हाइपर चार्ज दो ही पायोन्स कंसीडर करूँ, पाई पॉजिटिव और पाई 0, तो इनका सम क्या होगा? +1। और अगर इनके हाइपर चार्ज की फिर मैं बात करूँ दैट विल बी y = 2 × 1, और ये क्या होगा? हाइपर चार्ज 2 आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया है। अगर आपको लेकिन हमें पूरी क्लास ही लेनी होती है किसी पर्टिकुलर हाइपर चार्ज को फाइंड करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज स्ट्रेंजनेस। सो ये जो क्वांटम नंबर है ये समझने के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो समझना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंजनेस इज स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वार्क दैट इज स्ट्रेंज क्वार्क। सो स्ट्रेंज क्वार्क की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो जो हमारे 6 क्वार्क्स होते हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस +1 होगी और किस पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस -1 होगी। सो यहाँ पे एक चीज़ आपने याद करनी है, जो स्ट्रेंजनेस है अब जैसे हमने पहले बात करी, अगर स्ट्रेंज जैसे लेप्टॉन कोई होगा तो उसका +1 होगा, बेरियन होगा कोई और उसका +1 होगा, और अगर एंटी लेप्टॉन और एंटी बेरियंस होंगे तो उनके -1 होंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो स्ट्रेंज पार्टिकल होगा खुद को उसके लिए -1 होगा, और जो एंटी क्वार्क होगा स्ट्रेंज का उसके लिए +1 होगा, और जिन पार्टिकल्स में स्ट्रेंज क्वार्क आएगा ही नहीं उनके लिए स्ट्रेंजनेस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने भी पहले बताया कि जो ओमेगा नेगेटिव है वो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। सो ओमेगा नेगेटिव का जो जो क्वार्क कंटेंट है, ओमेगा नेगेटिव का क्वार्क कंटेंट दैट इज SSS। सो ये क्वार्क कंटेंट कैसे, ये हम अपने फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, दैट इज़
क्वार्क कंटेंट ऑफ हेड्रॉन। सो ये मेरा फेवरेट अभी तक का मतलब फेवरेट लेक्चर रहेगा, क्वार्क कंटेंट ऑफ हेड्रॉन्स, बिकॉज आई लव स्टडिंग और टीचिंग क्वार्क्स। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे पहले मतलब स्पिन और आइसोस्पिन में और डिफरेंट पार्टिकल्स की स्पिन क्या है आइसोस्पिन क्या है, तो दिस इज़ अ टेबल विच इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल द spins and isospin of all the particles like baryons and mesons or nucleons also. So I hope this table is helping you finding the difference between spin and isospin and practicing problems related to this. So that's all for today. I hope this lecture is helpful for you and helping you in your preparation of lecturer cadre as well as master cadre science. Or do like, share, subscribe, and press the bell icon to get the notifications whenever I upload a new video. And thank you very much.